Hi everyone, I'm Kashish and today we'll be solving the 24th contest. So let me just share my screen. So basically in this there are four questions. This is the first one. The question is Ninja and the array. The problem statement says Ninja has given an array A of n integers. Each integer in an array is a power of 2. The Ninja can perform the following operation on the array any number of times. Choose any two equal integers from the array, remove them, and insert their sum again in the array. Ninja has to tell if after some moves, possibly 0 or more, it is possible that the number 2048 will exist in the array or not. Return 1 if it is possible, and return 0 if not. So, so basically, what the question said, we have an array of size n. Each element is a power of 2, and basically, we can do this operation any number of times. That is, take any x and y, where x is equal to y, remove them from the array, and add their sum. And we have to return 1 if it is possible that we might get 2048 at some point, otherwise 0. I hope the question is clear. So, basically, the first approach that comes to my mind by reading, remove, and add is using a priority queue. There is a similar question related to this that can be solved with priority queue. So basically, what the approach can be for this is basically we know that any number greater than 2048 will not contribute to our answer, and if 2048 is already present as it is, we can directly return 1. Otherwise, for all numbers lesser than 2048, we can push them in a min priority queue. And then what we can do is take the top element and then check if it is 2048. If so, then return 1. If not, then take the next element x and then check if both are equal. So basically, we take a t, pop it out. We take a x, we pop it out. And then we see if both are equal, then we push t plus x, and if not, then we can simply insert x again so that x can be checked with the next number. Were you able to understand the approach? Or if there is any doubt, do let me know in the comments. So basically, the algorithm for this will become, so make a min priority queue, insert all numbers less than 2048, and in the meanwhile check if we have any 2048 already present. So after inserting, there should be a loop while not pq dot empty, and in that we will first take out the top element. We will pop it out. We will check if we have encountered any 2048. If not so, then we'll go to the next element and then check if t equals x. If so, then push their addition.
Otherwise, push X for further computations. Let's see this with an example. So the example we have is n equals 4 and the array elements are 1024, 512, 64 and 512. So if we insert this in a min queue, let's say we get 64, 512, 512 and then 1024. So first we'll check 64, then we'll move on to the next element because this is not equal to 2048 and then we'll encounter a 512. These are not equal, so this will be popped out and we'll push back 512 again. Then the next number we'll encounter will be 512 itself. Since they are equal, we'll remove these two and insert their addition, which will be 1024. So then in the next iteration, we'll get 1024, we'll have the check, then we'll get 1024 again. Since these are equal, we'll remove both of them and insert their addition 2048. And after that, in the next iteration, we'll directly get 2048 so we can return 1. I think this should work. So if we have a 2048 directly, we return 1. And for this case, we will have 2, 64, 512. We'll pop out 2. Then we'll check 64, but 64 and 2 are not equal. So we'll push 64 back. Then we'll get 64 and then we'll get 512. These are not equal. So we will remove these and add 512, and when 512 is last checked it will be removed again, there will be no element present, so we'll return 0. Okay, let's try coding this. If you all have any doubt for this approach by this time, do let me know. So I hope you understand why I chose min-q and not max-q for this particular implementation. And if not, if you know why so, then do comment. If you're not understanding why is this a particularly min-q question, then also kindly ask. Oh, So our min-q is ready. Now we just have to iterate while. Now, if not so, we take out another x. Since both of them are already popped out, we can directly push their sum.
and if they are not equal, we have to push back x for further computation. And if one is not returned, then we have to simply return 0. We got a runtime. Okay, so before popping out, we have to check if there is any other element present. So let's wait within 1. Hmm. So if this is there, then return 1. If it is greater than 1, then we pop this out. We check if they are equal and we push. Otherwise, we push back x. तो ये ट्राई रन करके देखते हैं. So बाकी सब ठीक है. फर्स्ट वाला इज फेलिंग. फर्स्ट वाला टेस्ट केस इज ठीक है. तो बेसिकली इट इज 641024. Basically 464. एंड 102. ठीक है. तो सबसे पहले हमने चेक किया कि कोई 2048 है क्या. इफ नॉट देन वी एंड इफ इट लेस देन 2048 तो वी पुश्ड इट इन द क्यू. ठीक है. देन वी टुक टॉप. तो दिस विल प्रोसीड एज. So when first iteration में t is equal to 4, t is not equal to 2048 and ये निकल गया. And size is still greater than 1, so x is 64 and this is popped out, but these are not equal, so we push it back again. Then in the next iteration t is equal to 64, x is equal to 256. This is popped out, this is popped out, दोनों सेम नहीं है तो हमने 256 रीइंसर्ट किया. फिर t is 256, x is 512. popped out सेम नहीं है तो 512 इंसर्ट किया. फिर t is equal to 512, x is equal to 1024. सेम नहीं है तो फिर से इंसर्ट कर दिया. देन नेक्स्ट आइट्रेशन में t is equal to अच्छा इज ग्रेटर देन 0 आएगा साइज. ठीक है. सो बेसिकली एरर ये हो रहा था कि मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि साइज हैज टू बी ग्रेटर देन 1, सो एसेंशियली साइज शुड बी एटलीस्ट 2.
which should not be the case. So submit. Time limit exceeded. So basically, this is a n log n solution, and if the time limit is exceeded, that means there exists a linear solution for this particular question. ठीक है. सो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि 2048 होना चाहिए. हमें ये पता है कि 2048 से बड़े नंबर्स आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे. 2048 होगा तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा. एंड देन टू गेट एनी नंबर, सो 2048 के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? 1024 एंड 1024, एंड सिमिलरली इट विल गो ऑन कि अगर ये एक है ये नहीं है तो वी रिक्वायर 512 एंड 512. तो बेसिकली यहाँ पे ना एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट वी कैन से. तो अजम्पशन गिवन इज कि अगर हमारे पास 2048 से छोटे सारे नंबर्स हैं विच आर पावर ऑफ 2, सो लाइक 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस no 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 till 1024. If this is so, then their sum would be which is equal to 2047. This is when we have all unique numbers. At least मतलब एक प्रेजेंस तो है उनकी. तो दिस विल बी द सम. एंड इसके बाद क्या होगा ना, इफ यू गेट एनी टू की पावर, लेट्स से यू हैव 1 और 2 और एनीथिंग, तुम्हें 2048 डेफिनेटली मिल जाएगा बिकॉज सब सम होते जाएगा. जैसे लेट्स से यू हैव 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, मतलब 4 इंसर्ट हो जाएगा. फिर 4 के बाद 4 प्लस 4 8, ऐसे करते करते यू विल गेट अनदर 1024, एंड इन दोनों को ऐड करके यू विल गेट योर रिक्वायर्ड सम. सो बेसिकली इफ, एंड इस केस में क्या होगा, यू कैन सी इफ यू ऐड एनी टूज पावर, मतलब सिर्फ वन ही जरूरी नहीं है, कोई भी टू की पावर हो. जैसे तुम्हारे पास डायरेक्टली एक और एट है, सो 8 प्लस 8 will give you 16, then 16 will be added with another 16 that is present. So this will eventually return in you getting a 2048 again. So any two's power greater than, sorry, any two's power added to this sum will ensure that you get a 2048, and in this case your sum will be greater than equal to 2048. So if your array sum becomes greater than 2048, it gives you a surety कि हाँ 2048 आ ही जाएगा, कि कुछ ना कुछ ऐड होते जाएगा. This is a little trickier to understand, but एग्जाम्पल्स लेके देखो जैसे मैंने इसमें समझाया, तो दिस गिव्स यू अ पक्का श्योरिटी कि हाँ 2048 आ ही जाएगा. ऐसा कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बैठ ही जाएगा. एंड अगर दिस कैन ऑल्सो रिजल्ट इन अ डाउट कि लेट्स से सिर्फ 512 है और 64 है, मतलब ऐसे कुछ कुछ नंबर्स ही हैं यूनिक, सब यूनिक नंबर नहीं है हमारे पास 2 की पावर के. तो इस केस में तुम्हारा सम 2047 या फिर मतलब बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 2048 आएगा ही नहीं. You can try this with examples, and hence the approach for this question can be summarized as discard numbers greater than 2048, then sum the array elements, and if the sum is greater than equal to 2048, return 1, otherwise return 0. तो आई ट्राई कोडिंग दिस. इसमें कहीं कुछ डाउट आता है कि इस अप्रोच में ऐसा क्यों हुआ, तो प्लीज लेट मी नो.
So we take a variable and sum equals 0. This is the base case कि अगर already present है तो 1 return कर दो. If it is greater than, basically less than ही लिख लेते, greater than पे continue लिखने से अच्छा. तो अगर less than है तो ही उसको sum में add करो. ये होने के बाद basically you only have to check if sum is greater than equal to 2048, and if so we can return 1. Why is this still giving a time limit exceeded? ये मेरा यही वाला कोड क्यों ले रहा है फिर से? आई थिंक मेरे कंपाइलर में कुछ इश्यू है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एन से तो क्या ही कम होगा. हमने अगर सेम नंबर मिला तो वी आर रिटर्निंग दिस, ऑल्दो दैट्स नॉट नेसेसरी. तो मे बी लेट्स, बट दिस शुडंट इवन मेक अ डिफरेंस. कांस्टेंट ऑपरेशन यही है. एंड इफ दिस इज लेस देन 2048, आई एम टेकिंग द नंबर करेक्ट, राइट? 208, हाँ, तो सम कर दो. सम में ऐड कर दिया एंड वी आर बेसिकली कीपिंग अ चेक. इफ सम इज ग्रेटर देन दिस देन वी रिटर्न 1. नहीं, that shouldn't make a difference for this. I'll have to check what's the issue. You need me to explain this again? ठीक है. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, वी नो कि 2048 से जो बड़े नंबर होंगे, एनी नंबर greater than this will not contribute to the answer. 2048 होगा तो it will directly be the answer. अब बात बची 2 की पावर्स जो 2048 से छोटी हैं. तो अगर हम ये अज्यूम करें कि सारी पावर्स एटलीस्ट एक बार प्रेजेंट हैं, जैसे 1 plus 2 plus 4 and all this summed up till 1024, this comes out to be 2 raised to 11 minus 1 GP का sum, which is equal to 2047. अब इस नंबर में अगर हम कोई सबसे छोटी पावर भी, विच इज बेसिकली 1, ऐड करेंगे तो तो क्या हो जाएगा ना, 1 जैसे एक और प्रेजेंट है तो 1 plus 1 will give you 2, 2 plus 2 will give you 4, 4 plus 2 4 will give you 8. तो ऐसे करते करते ना you will find another 1024. तो 1024 plus 1024 will give you the required answer. So even the smallest whose power added here gives you 2048. ठीक है. अब इसमें जरूरी नहीं है सबसे छोटी पावर ही हो, कोई और 2 की पावर, जैसे 8 है सपोज. अगर हम 8 plus 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा, एंड देन दिस साइकिल विल कंटिन्यू. तो यू नो कि जैसे अगर इसमें हमने 16 ऐड कर दिया तो इट विल गिव यू अ नंबर ग्रेटर देन दिस. सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से हियर इज, अगर तुम्हें ये सम मिलता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2048, तो दैट गिव्स यू श्योरिटी कि हाँ ये नंबर तुम्हें इसमें प्रेजेंट मिलेगा ही बाय एनी कॉम्बिनेशन दैट कम्स आउट. तो द एल्गोरिदम विच आई यूज्ड वाज कि अगर इससे बड़े नंबर हैं तो डिस्कार्ड कर दो, ये है तो रिटर्न 1, अदरवाइज बाकी सबका सम कर दो और एंड में चेक कर लो. इफ
सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2048, तो रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न 0। अब ये डाउट आ सकता है कि हमने ऐसे क्यों सोचा कि ये सब तो होंगे ही नहीं। तो कोई और भी अगर कॉम्बिनेशन होगा, जैसे 512 512 1024, जस्ट एन एग्जांपल, तो जब हम इसे ऐड करेंगे ना तो you'll गेट 2048। ऐसे में इफ देर इज अ वन प्रेजेंट, सो 2049, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2048, पॉइंटिंग कि हाँ ये वाला तो बन ही रहा है नंबर। और भी कॉम्बिनेशन लेके ट्राई कर सकते हो, तो you'll अंडरस्टैंड कि हाँ दिस, ओह सॉरी। सो एज आई वाज सेइंग कि तुम और भी कॉम्बिनेशंस लेके ट्राई कर सकते हो, कि अगर 2048 नहीं बनेगा ना तो सम ग्रेटर देन दिस आएगा ही नहीं। जैसे सिर्फ अगर 116 और 512 ले लिया मैंने सपोज, तो इसमें मैंने एक और 16 ऐड कर दिया और एक 4 ऐड कर दिया, कुछ भी कॉम्बिनेशन डालूंगी तो भी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2048 नहीं आएगा। इसमें 1024 भी ऐड कर दिया। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं इसमें और ऐड करती जाऊँ, जैसे मैंने और 16s ऐड कर दी, so this will become 32, this will become 32, and 32 plus 32 will give you 64, एंड ऐसे और उसको मुझे 16s ऐड करने पड़ेंगे ताकि लास्ट में हमें एक और 1024 मिल जाए, ताकि सम इससे बड़ा हो। और अगर सम इससे बड़ा हो रहा है दैट मीन्स हाँ कि कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बैठ रहा है कि 2048 नंबर मिल ही जाएगा। तो बेसिकली दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कोड। we'll come back to this again, वरना आगे के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट आई थिंक दिस शुड वर्क क्योंकि है तो ऑर्डर एनी। So the next question is, there are n balls arranged in a row from left to right. Each of the ball has a color that can be represented by a number between 1 and 10 raised to 9. For each eye, the color is AI. Ninja can choose k consecutive balls from this row. That is, he can choose an integer I such that this and these are the balls from the left. तो बेसिकली वो कोई भी k consecutive balls चूज कर सकता है, और उसका स्टार्टिंग इंडेक्स अगर आई है तो ऑफ कोर्स लास्ट इंडेक्स विल बी आई प्लस के माइनस वन। एडिशनली ही कैन चूज एट मोस्ट वन, ठीक है, मतलब या तो नो या तो वन of these k balls and repaint it to a color of his choice. Ninja wants to get the maximum variety in colors in the selected k consecutive balls, and for this he will choose some optimal I. Return maximum possible number of distinct colors in balls that he can get. ठीक है। हम्म। So the second question is, there are n balls A0 से लेके AN तक, and this basically is a integer, that is the color of the ball. तो हमें क्या करना है, निंजा कैन चूज k consecutive ones, और ये k consecutive में ही wants कि मैक्स डिफरेंट इंटीजर्स प्रेजेंट हो उसे, मतलब बेसिकली बहुत सारे कलर्स, मैक्सिमम कलर्स होने चाहिए उसमें। एंड द ऑपरेशन ही कैन डू इज ही कैन चूज 0 और 1 बॉल एंड देन रीपेंट। नाउ वी हैव टू टेल कि अगर ऐसा कौन सा, मतलब हाँ उसने ऑप्टिमल ले लिया तो उस ऑप्टिमल में कितने डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होंगे। so basically number of unique integers present in that k sized subarray. I hope the question is clear. So of course the naive approach that comes to mind is कि
सारे के सब एरेज बना लो, के साइज सब एरेज। जैसे अगर लेट्स से वी हैव कोई टेस्ट केस देख लेते हैं दैट इज गिवन देयर, एंड फिर उस पे वेरीफाई करते हैं। 1 2 1 3 2 3, 1 2 1 3 2 3 एंड केस 3। तो ऐसे में जो 3 साइज सब एरेज बन सकते हैं वो है 1 2 1 2 1 3 1 3 2 एंड 3 2 3। अब इसमें कितनी यूनिक प्रेजेंट हैं? 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2। बट क्या हो सकता है कि ही इज अलाउड टू रीपेंट एटलीस्ट, मतलब एट मोस्ट 1, तो वो इसको या इसको 3 कर सकता है। तो ऐसे केस में भी हमारे पास 3 आ जाएगा। एंड सेम फॉर दिस कि वो इसको या इसको 1 कर सकता है। तो द क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कैन बी, मतलब नाइव अप्रोच ऑब्वियसली, कि तुम सारे के साइज सब एरेज ले लो, फिर उसमें काउंट करो कि कितने यूनिक इंटीजर्स प्रेजेंट है। यूनिक इंटीजर्स प्रेजेंट है वो हम कैसे कर सकते हैं? बेसिकली फ्रीक्वेंसी स्टोर करके एक मैप में, या फिर एक सेट यूज कर लो डायरेक्टली, क्योंकि सेट ऑलवेज टेक्स यूनिक नंबर्स। तो अगर हम सेट में इंसर्ट करते हैं 1 2, तो एंड में हमारे पास आएगा सेट का साइज एज 2। एंड वी नो कि आवर sub array size is 3, so there is one integer that is repeating. So ऐसे केस में you can do +1, तो तुम्हारा total answer that will come out to be is 3. इस केस में your set size will be 3, no changes. तो basically इनका सबका maximum store करते जाओ and in the end return that maximum number. That can be the brute force approach for this. ठीक है, आई होप ब्रूट फोर्स अप्रोच समझ में आ गई। ब्रूट फोर्स अप्रोच समझ में आ गई तो वी कैन मूव ऑन टू द थोड़ा ऑप्टिमल वन, which is using some concept that we already discussed here. तो बेसिकली ये वाला जो होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n इंटू के, बिकॉज हम के सब एरेज निकालेंगे बार बार। सो दिस क्वेश्चन मतलब पढ़ के इट पॉइंट्स यू आउट कि उसको सब एरेज चाहिए। तो यहाँ पे हमने पहले 1 2 1 लिया, देन हमने 2 1 3 लिया। हम ये विंडो स्लाइड कर रहे हैं ऑफ साइज के। दिस इज अ स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन। सो स्लाइडिंग विंडो वाली अप्रोच कैन बी, तो हमारा मेन मोटिव तो वही है, इन द गिवन सब एरे हमें देखना है कि कितने यूनिक इंटीजर्स प्रेजेंट है। सो लेट्स से हमने पहला सब एरे कंसिडर किया। अब इसमें क्या किया हमने, एक मैप बनाया ताकि हम नोट कर सके कि हम कौन से इंडेक्स पे हैं और उसकी कितनी, मतलब वहां से अगर हम सब एरे कंसिडर करते हैं तो कितने यूनिक हैं उसमें। तो पहले हमने इस मैप में 1 डाला, 1 की फ्रीक्वेंसी इज 1, देन हमने 2 डाला, 2 की फ्रीक्वेंसी इज 1, एंड देन 1 वापस डाला तो इसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट हो गई। सो फॉर द फर्स्ट सब एरे हमारा मैप ऐसा दिखेगा। देन व्हाट वी कैन डू इज, हम जब इसको आगे स्लाइड करेंगे तो हमने यहाँ पे से शुरू किया था, हमने पहले ये सब चीजें इंसर्ट कर दी थी, तो हमने यहाँ से शुरू किया। लेट्स से आई, जब हमारा i+1 होगा तो हमें पता है कि ये वाला इंडेक्स क्या होगा, बिकॉज वी नो दैट साइज हैज टू बी k. So if this is your I, this will be, for a given I you have to go back k times. So I minus k and then +1, this will be the index. तो हम क्या करेंगे, जब हम अपना i बढ़ाएंगे और नया कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे मैप में, तो हम ये वाला जो एलिमेंट है उसको मैप से रिमूव कर देंगे ताकि हमारा आंसर की कंसिस्टेंसी बनी है। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। तो व्हाट आई मीन इज, थोड़ा बेटर समझाने की कोशिश करती हूँ। तो लाइक अ नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो क्वेश्चन, हमने इस पे ऑपरेशन किया, इसको हटा दिया जब हम यहाँ मूव कर रहे हैं। फिर जब हमने एक और बार आगे मूव किया तो इस वाले को रिमूव कर दिया, एंड जो करंट सब आ रहे हैं
उस पे अपना ऑपरेशन किया। अब हम ये वाली चीज कैसे अचीव करेंगे? So we'll take a map and in that insert the first k minus 1 elements. So our map will be like this. जब हम यहाँ आएंगे तो let's keep a pointer I. अब हमें पता होगा कि यहाँ से हमारे सब एरेज एक्चुअली शुरू हो रहे हैं। यहाँ तक तो k minus 1 साइज था ना, for k is equal to 3. So when our I is here, so basically our I will be k minus 1th index. Then what we'll do is we'll first insert this element, so it will become 2. तो अब हमारे पास हमारा सब array to be computed is ready. So here we'll compute कि हमारे पास कितने unique elements हैं, that is m dot size. हमारे पास 2 unique elements हैं and we know कि हमारा सब array size is 3. That points कि हम कोई एक element को repaint कर सकते हैं. So basically we'll keep an answer variable which will be max of answer comma u and there will be a condition कि हम u plus 1 कर सकते हैं कि नहीं, and this will depend upon what is u. If u is equal k, मतलब हमारे पास जितने यूनिक एलिमेंट्स, मतलब जो हमारे सब एरे का साइज है उतने ही यूनिक एलिमेंट्स है, तो वी कैन नॉट डू प्लस 1. बट इफ इट इज नॉट सो कि नॉट इक्वल टू के या फिर मतलब बेसिकली लेस देन के, तो वी कैन डू प्लस 1 इस केस में. तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा करंट सब एरे के लिए कंप्यूटेशन. और उसके बाद हमें क्या करना होता है स्लाइडिंग विंडो में, जो प्रीवियस था, जो हमें नेक्स्ट आगे काम नहीं आएगा, उसे हटाना होता है. सो वी विल डू, हम बेसिकली इस 1 को हटा देंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी फिर 1 हो जाएगा. एंड हाउ वी विल डू दैट इज एम ऑफ एरे का आई हमने क्या किया था, के माइनस हो जाएगा और फिर प्लस 1, ये इंडेक्स होगा वहां का, तो इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस कर दूं. एंड इफ लेट्स से बेसिकली ये करते हैं, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 या लेस देन 0 हो जाती है तो उसे मैप से हटा दो ताकि वो साइज में कंट्रीब्यूट ना करे. आई होप समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो बेसिकली जैसे एल्गोरिथम तो मैंने यहाँ लिखी दी है. लेट्स ट्राई डूइंग अ ड्राई रन ऑन सम अदर टेस्ट केस टू सी इफ दिस इज एक्चुअली वर्किंग और नो. सो वी हैव 1 1 2 1 and k is 3. ठीक है. सो 1 1 2 1 and k is 3. तो स्टार्टिंग में हम हमारे मैप में 1 इंसर्ट करेंगे दोनों, फिर 2 पे आएंगे तो इट विल बी 2 and 1. फिर हम कंप्यूट करेंगे. हमारे पास पहले तो हमारा आंसर 0 होगा, फिर फर्स्ट कंप्यूटेशन पे इट विल टर्न आउट टू बी मैक्सिमम एलिमेंट्स इज 2 and 2 is not equal to 3, so our answer will be updated to maximum of 0 comma 3, that is 2 plus 1. तो हमारा आंसर हो गया 3. एंड देन हम ये लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर देंगे, सो इट विल बिकम 1. अब हम फिर से आगे आएंगे, यहाँ पे हम इसकी फ्रीक्वेंसी इंसर्ट करेंगे इसमें, एंड देन इट विल बी द सेम थिंग. सो आवर आंसर विल कम आउट टू बी 3 व्हिच इज एज एक्सपेक्टेड. आंसर 3 होना चाहिए ना. ठीक है. तो जो हमारा लास्ट सोल्यूशन था उसमें हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी n इंटू के, बिकॉज हम के सब एरेज बना रहे थे n में से बार बार. बट इन दिस व्हाट विल हैपन इज हम एक ही ट्रैवर्सल कर रहे हैं, हम आगे जाते जा रहे हैं, हम वापस पीछे नहीं आ रहे. सो आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस विल कम आउट टू बी 1 एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी k, क्योंकि हम एक बार में एट मैक्स k एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे हमारे मैप में. सीम्स ओके. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n and space complexity k which is less than the previous approach. तो let's try coding this. इसमें कुछ डाउट हो तो please let me know. So what we discussed कि पहले एक मैप बना लेंगे,
keep a note of all the unique elements. तो पहले हम k-1 एलिमेंट्स डालेंगे. So m at I प्लस प्लस हमने इनकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दी. ठीक है, तो अभी हमारा एक्चुअल कंप्यूटेशन शुरू होगा. तो आंसर 0. देन फॉर हमने k-1 तक डाले थे, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम k-1 is less than n I plus plus. Then what we will do is we will हमने सिर्फ k-1 चीजें अब तक डाली है, और सब एरे का साइज हैज टू बी k. तो हम पहले इंसर्ट करेंगे. तो हमने इंसर्ट कर दिया. देन द यूनिक elements that we have is m dot size. Now we will see if we need to repaint. वो हमें पता चलेगा अगर हमारे पास जो यूनिक एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे साइज के इक्वल है, तो हम उन्हें रीपेंट नहीं कर सकते बिकॉज दैट विल मेक नो डिफरेंस. So in this case, our answer will be updated as answer of max, comma u. And if not so, that means we can repaint. So answer will be max of answer, comma u plus. So and after that we have to remove it. तो हमने जो इंडेक्स डिसाइड किया था दैट वाज I minus k plus 1 को माइनस माइनस कर दो. एंड इफ दिस बिकम्स 0, so we remove this. तो m dot erase. And then basically end में we will return our answer. Let's try running this. सारे टेस्ट केस पास सबमिट करते हैं. चलो ये तो हो गया. ना लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन आई होप समझ आया होगा. So the third question is Ninja sweets. So Ninja has three different types of sweets. There are n sweets of each type, and each sweet has a tastiness value. This value for sweets are given in three arrays. The tastiness value of two sweets of a particular type can differ. ठीक है. Ninja wants to choose three sweets, exactly one of each type. Let the chosen sweet tastiness value be A, B, and C. You need to choose the sweet such that the value of the given equation is minimized. ठीक है. So basically in the third question हमारे पास तीन एरे हैं A, B और C, each of size n. इनमें A0, A1 ऐसे करके AN तक है. Similar for this. सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इन तीनों में से ऐसे कुछ चूज करना है. इसमें से कोई एक ए चूज करना है, इसमें से एक बी, इसमें से एक सी, इन सच अ वे दैट द इक्वेशन दिस इज मिनिमम. आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा ये. तो बेसिकली ऑफ कोर्स द नाइव अप्रोच ऑफ दिस इज कि सारे कॉम्बिनेशंस ले लो. टेक 3 लूप्स, हर बार हर को चेक करते जाओ साथ में. तो उसका एल्गोरिदम कुछ ऐसा होगा कि फॉर पहले ऑल एज, उसके अंदर फॉर बी एंड फॉर सी, you compute this equation's value and update your answer, and in the end you return answer. This will be n cube. And
नो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जस्ट n क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, दिस इज द नाइव अप्रोच। अभी थोड़ा कुछ ऑप्टिमल सोचते हैं इसके बारे में कि क्या कर सकते हैं। ये इक्वेशन मिनिमम कब होगी? ये इक्वेशन मिनिमम होगी द मोस्ट ऑब्वियस वन बीइंग a इक्वल्स b इक्वल्स c। अगर ये हमें मिल जाता है तो ये जीरो हो जाएगा टोटल, सो हमें मिनिमम मिल जाएगा। दिस ऑल्सो पॉइंट्स आउट कि अगर दो भी इक्वल हैं एंड दिस जैसे b और c इक्वल है, लेट्स से 5 and 5, तो अगर ऐसा कोई a ढूंढे हम जिसकी जिसका और 5 का डिफरेंस इज मिनिमम, जैसे 6, 4, 7, 9, इन सब में से 4 या 6 चूज करना मेक्स सेंस बिकॉज देन इन दोनों का डिफरेंस इज मिनिमम कंपेयर्ड टू अदर्स। सो वी हैव टू डू समथिंग अराउंड दिस ऑब्जर्वेशन। तो अगर हमें मिनिमम, तो बेसिकली वी डोंट हैव टू टेक दिस एट रैंडम, जैसे n क्यूब में तो सब रैंडम होगा तो भी हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट वी नीड टू सॉर्ट दीज एरेज। तो फर्स्ट थिंग इज सॉर्ट ऑल थ्री। कोई एग्जांपल लेके चलते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 4 2 5 3 2 1। तो हमारे पास ये तीन एरेज प्रेजेंट हैं। तो पहले हम इन्हें सॉर्ट कर लेते हैं। हम्म, तो दिस विल रिजल्ट इन 2 4 5 1 2 3। मतलब सॉर्ट करने का आइडिया क्यों? क्योंकि अगर रैंडम रहेंगे तो इट मेक्स नो सेंस कि हम कैसे पिक करेंगे कि कोई इक्वल है या उनमें डिफरेंस मिनिमम है। बट इफ वी सॉर्ट देम तो हमें पता है कि सबसे छोटे वाले पहले होंगे, तो वी कैन डू समथिंग अराउंड कि हाँ इसके आगे इससे बड़ा नंबर ही होगा। तो वी कैन थिंक अराउंड दैट। तो पहले हमने सॉर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम तीन पॉइंटर्स लेके चलते हैं, ए बी सी। पहले हमने इसका कंप्यूट किया तो इट विल बी 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 1 4 एंड 2 माइनस 5 3, सो दिस इज 8। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि अगर ए बी सी ये है पर्टिकुलरली तो इट विल गिव अस 8। एंड नाउ वी हैव टू डिसाइड कि हम कौन सा पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे और कैसे बढ़ाएंगे। सो व्हाट वी वांटेड इन लेट्स से टू नंबर्स, मतलब नॉट टू नंबर्स, ए बी सी में हमें क्या चाहिए था कि या तो वो तीनों इक्वल हो जाएं या फिर जो दो नंबर हैं इन ऑल कॉम्बिनेशंस उनमें डिफरेंस मिनिमम हो। अब डिफरेंस मिनिमम होने के लिए वी नीड अ बिगर नंबर फॉर अ बिगर नंबर। तो क्या हम सबसे छोटे नंबर को अगर आगे बढ़ाते हैं तो इट विल गिव अस अ बिगर नंबर इन कंपैरिजन टू इट। ऑब्वियसली बड़े से छोटे पे जाएंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा। तो अब क्या होगा, इसका और इसका डिफरेंस में फर्क आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में का डिफरेंस कम हो जाएगा एंड दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। तो इफ वी मूव आवर बी हियर, तो हमारे पास है 2 2 एंड 5। तो हमारा एक ब्रैकेट तो जीरो हो गया, दूसरा ब्रैकेट 5 माइनस 2, और उसके बाद एक और 5 माइनस 2, सो बेसिकली वी गॉट 6 हियर। तो बेसिकली हमें सबसे छोटे नंबर को आगे बढ़ाना है। आई होप दैट मेक्स सेंस। ठीक है, तो जैसे हमें ये तो पता है कि छोटे नंबर को आगे बढ़ाना है। अब क्या हो सकता है, हमारे पास जब ए बी और सी हैं, तीन पॉइंटर्स हैं, तो क्या हो सकता है कि या तो तीनों इक्वल हैं नंबर, एंड इफ दिस इज द केस वी नो वी गॉट आवर मैक्सिमम। सो कुछ करना ही नहीं है। इफ नॉट सो, तो पॉसिबिलिटीज कि तीनों डिफरेंट होंगे, इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। ऐसे केस में हमने देखा कि सबसे छोटे वाले तो मिनिमम पॉइंटर को आगे कर दो। दैट इज व्हाट वी डिड।
बट एक लास्ट केस क्या बनता है कि कोई दो नंबर्स इक्वल है। तो लेट्स से हमने अभी कंसिडर किया कि ए और बी इक्वल है, बट इट कैन ऑल्सो मीन बी एंड सी इक्वल, ए एंड सी इक्वल है, एंड देयर इज दिस थर्ड नंबर सी। अब इसके साथ भी दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर दिस इज ग्रेटर देन और लेस देन। एग्जाम्पल लेते हैं 2, 2 एंड 5। ठीक है, ये ए बी और ये सी। पहले छोटा नंबर लेके देखते हैं, जैसे 2, 2, 1, ए बी एंड सी। इस केस में हमें पता है छोटा नंबर ही आगे बढ़ाना है हमें, तो सिंस ये सबसे छोटा है तो वी नो कि सी वाला पॉइंटर आगे बढ़ा दो। बट व्हाट इफ सी इज ऑलरेडी ग्रेटर, तो अब हमें इन दोनों में से कुछ आगे बढ़ाना है बिकॉज ये छोटे हैं। तो अब ये चेक कैसे करेंगे? तो अब इनका जो कंपैरिजन है कि व्हाट हैज टू बी मूव्ड फॉरवर्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर एडजेसेंट टू इट। जैसे लेट्स से यहाँ पे है 3 एंड 4। इस केस में छोटा यहाँ पे पॉइंट आउट करा, तो वी विल मूव ए पॉइंट, छोटे नंबर के टुवर्ड्स हमने उसको पॉइंट कर दिया। हमें डिफरेंस मिनिमम करना है ना, 5, 2 and 3, तो it will be 3 minus 2, 1, 3 minus 5, 2 and 5 minus 3, 2, ये दोनों 3, so this gives us 6। छोटे वाले की तरफ अगर हमने पॉइंट किया, तो अगर let's say we moved it to 4, I don't think this will give us a difference in this case। 2 minus 4, 2, this will give us 1 and this will give us 3 again। Let's take some other example to understand this better। जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर 7 होता और यहाँ पे मेरे पास कहीं पे लेट्स से 1 होता एंड यहाँ पे 4 होता, हाँ, मे बी दिस एग्जाम्पल विल वर्क। 1, 4 एंड 7। ठीक है, तो हमने क्या डिसाइड किया कि छोटे नंबर के वर्ड्स मूव करना है, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये करना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 2 एंड 5। तो इसमें क्या बन जाएगा, 1, 3, 4, 8। बट अगर हमने इसको मूव किया होता आगे, तो इट वुड बी 2, 4 एंड 5। इस केस में हमारे पास क्या होता है, 2, 1 एंड 3, विच गिव्स अस 6। इंटरेस्टिंग। तो हमें बड़े वाले को मूव करना चाहिए, बट दिस कैन कॉज लॉस ऑफ वैल्यू। हाँ, अगर हम इस पे मूव करते हैं तो वी गेट 8, बट फिर हम अगर हम इस पे डायरेक्टली मूव करते हैं तो हम यहाँ मूव करेंगे ही नहीं, सो दिस विल कॉज लॉस ऑफ वैल्यू टू अस। छोटे के टुवर्ड्स ही मूव करो, ताकि तुम नेक्स्ट वाले केस में तो तुम यहाँ आ ही जाओगे। इफ दिस कीप्स ऑन मूविंग फॉरवर्ड दिस विल इवेंचुअली गिव यू 4, बट इफ यू स्टॉप हियर यू माइट नॉट मूव फॉरवर्ड एट ऑल। सो ये केस तो हम समझ गए कि अगर सी ही छोटा है तो सी को मूव कर दो, वरना छोटे को बड़े पे मूव कर दो, एंड देन यू नो कि नेक्स्ट कंप्यूटेशंस में तुम बड़े वाले से छोटे वाले पे आ ही जाओगे। लेट्स ट्राई कोडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। बीच में कुछ डाउट होगा तो प्लीज डू आस्क, वी आर ऑलरेडी रीचिंग 1 hour का लिमिट। तो लेट्स ट्राई कोडिंग दिस बाय द टाइम। कुछ डाउट होगा तो तुम पूछ लो, आई विल ट्राई टेलिंग, और अगर इस लॉजिक में कहीं एरर होगा तो वील डिस्कस दैट ऑल्सो। तो फर्स्ट स्टेप वाज सॉर्टिंग। 3 pointers, then ये तो बेस केस हो गया।
अब हमें इसमें कंप्यूट करना है, तो फर्स्ट वी नीड टू हैव अ आंसर वेरिएबल। हमें मिनिमम चाहिए तो हम इसको मैक्सिमम से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आंसर्स कंप्यूट करेंगे अपने। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट इशू। कोई नहीं, चलो। हमने बेस केस लिख लिया, हमने आंसर इनिशियलाइज कर दिया अपना। अब हम एक रैंडम मतलब करंट आंसर लेते हैं। करंट आंसर विल बी हमारा अभी वाला जो करंट आंसर। पहले मैक्सिमम मिनिमम ढूंढ लेते हैं। सो बिकॉज देन वी नो व्हाट पॉइंटर टू मूव फॉरवर्ड। p at x comma maximum of p at y comma c at z। ठीक है, नाउ अब वी वांट टू नो कि हमें कैसे फॉरवर्ड जाना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा इसका इंटू टू है। ठीक है, सो int difference equals if max difference और आंसर अपडेट करना है कि नहीं इज ग्रेटर देन करंट मैक्स। सो तुम ये देख सकते हो कि जो हमारा मैक्स और मिनिमम है वो जो डिफरेंस होगा उसका वो जो हमारी इक्वेशन है दैट विल बी टू इनटू दिस थिंग। सो हम इनटू टू एंड में कर लेंगे, अभी से वैसे अपडेट कर देते हैं। सो हम इसको छोटे पे लेके जाना चाहते हैं, हेंस करंट मैक्स माइनस करंट मिनिमम। इवेंचुअली आवर आंसर दैट इज टू बी रिटर्न विल बी टू इनटू आंसर। ठीक है, नाउ हमने करंट इंडेक्सेस के लिए तो ये चीज कंप्यूट कर ली। फिर हम देखेंगे कि हमें कौन सा पॉइंटर आगे बढ़ाना है। फॉरवर्ड इंडेक्स लेंगे उसको, हेल्पर। ठीक है, तो हम उसमें ये भेज देंगे हमारे वेक्टर्स एंड देन एक्स वाई एंड जेड। जैसे हमें लेट्स से इंडेक्स वाले इसने कुछ कुछ किया और हमें पता चल गया कि कहाँ जाना है, तो हम इसे रिटर्न करवाएंगे 0 1 2 पॉइंटिंग टू ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। सो 0 इक्वल्स ए, 1 इक्वल्स बी, 2 इक्वल्स कि सी का पॉइंटर आगे बढ़ाना है। सो हम बेसिकली चेक लगा देंगे इफ इंडेक्स इक्वल 0 तो एक्स प्लस प्लस, एल्स इफ इंडेक्स इक्वल 1 तो वाई प्लस प्लस, एल्स z plus plus, and then in the end we will simply return our answer which is 2 into answer। ठीक है, अब हमें बेसिकली क्या बचा, हमें पॉइंटर हेल्पर इम्प्लीमेंट करना बचा है। तो int pointer helper this takes abc and it takes in x y and z। ठीक है, अब इसमें क्या हमारे पास क्या कंडीशन थी कि पहले अगर तीनों डिफरेंट है तो simply move the smallest pointer। So basically, if a at x is not equal to b at y,
and a at x is not equal to c at z, एंड बाकी दो भी डिफरेंट है. b at y is not equal to c at z. तो हम so we'll find the minimum among the three. So find min. तो उसके लिए फंक्शन ही बना लेंगे. So int smallest equals find min. वो हमें इंडेक्स दे देगा बेसिकली कि ए में है वो सबसे छोटा एलिमेंट की बी में, एंड देन वी कैन सिंपली रिटर्न दैट इंडेक्स. तो हम रिटर्न ही कर देते, रिटर्न फाइंड मेन इंडेक्स. ठीक है, तो उसमें हमने भेज दिया ए एट एक्स, बी एट वाई, सी एट z. Now if all of those are equal b at y and then a at x equal c at z. So इस केस में तो हम कुछ भी रिटर्न करें, वी ऑलरेडी हैव आवर आंसर टू बी जीरो, तो return anything basically, return zero. Let's say we already have our answer to be zero here. इस केस में दोनों इक्वल आ जाएंगे नंबर्स, तो आंसर जीरो हो जाएगा, एंड जीरो से छोटा और कुछ हमें आगे मिलेगा नहीं, तो इट वोंट गेट अपडेटेड एंड आवर आंसर विल बी रिटर्न्ड एज 2 into 0. ठीक है, नाउ द मेन केस कि अगर सिर्फ दो इक्वल है, तो लेट्स से फर्स्ट की a at x is equal b at y, ये केस है हमारे पास. एंड देन द केसेस कि हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये c से कैसे रिलेट कर रहा है. सो इफ a at x, हम पहले देखेंगे अगर c छोटा है तो c को बढ़ा दो, c छोटा होने के लिए दिस हैज टू बी दिस साइन. ठीक है, इफ दिस इज सो देन यू कैन सिंपली रिटर्न 2 कि c को आगे बढ़ा दो, एल्स वी हैव टू डू समथिंग. तो उसके लिए अब हमें देखना है कि a के आगे क्या है, b के आगे क्या है. तो वी विल फर्स्ट चेक इफ x plus 1 is less than a dot size and then y plus 1 is less than b dot size. if so तो ही हम इनके आगे का चेक कर सकते हैं, अदरवाइज तो कोई एक ऑलरेडी एंड हो चुका है तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा आंसर्स आगे कंप्यूट ही नहीं होंगे. तो इफ दिस इज द केस कि हाँ दोनों में हम आगे चेक कर सकते हैं, तो चेक इफ a at x plus 1 is less than b at y plus 1, तो छोटा वाला आगे बढ़ाना है, so return 1. And if this is not the case, then you can simply return 2. ठीक है, अब क्या होगा कि इन केस इनमें से कोई एक एंड हो चुका है, तो if x is already equal to a dot size minus 1, तो वी कैन रिटर्न कि हाँ इसे ही बढ़ा दो. इस केस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वी ऑलरेडी रीच टू द एंड ऑफ सम एरे. ठीक है, otherwise else 1. Now the same thing will be done over and over again. ये वाला else is pointing to this else and यहाँ पे हमारा if खत्म हो रहा है, तो इसके आ जाएगा else if a at x is equals c at z. अब इसमें सेम चीजें होंगी, तो let's just copy this. Now if this is this and हम b को z से चेंज कर देंगे कि c if this is so, ये दोनों छोटे हैं एंड हम अब इस केस में इसको b से ही कंपेयर करेंगे. Now if this is equal to, हमने ऊपर b क्यों लिखा हुआ है, so I have not copied इसके ऊपर का, यहाँ पे if a is equal to this and this is b greater than, अगर b छोटा है तो b को बढ़ाना है आगे, तो return 1.
ठीक है, में बी को बढ़ाना है एंड नाउ वी चेक फॉर कि इन दोनों में आगे किसे बढ़ाना है, तो वी विल सी फॉर सी। सी एट जेड प्लस वन, अगर ए छोटा है तो इसे बढ़ा दो तो जीरो बढ़ेगा इस केस में। ए के लिए हमने जीरो ही लिखा हुआ है ना, आई एम राइटिंग समथिंग एल्स आई फील। सी के लिए टू है, ए के लिए जीरो है एंड बी के लिए वन है। Now, if B is to be moved forward, it's 1. If A is to be moved forward, it's 0. Otherwise, we can move C. Now, we'll check if this is the case, then we cannot move A, and otherwise, it will be C. ठीक है, this else is finished और ये वाला किसको point कर रहा है, ये वाले else को, this pointing to the back. So, else. Now, this is a comparison between B and C. So, now E at Y and this is C at Z. So in this case, E will be moved forward because it is lesser. Okay, now we will check if Z plus 1 is less than C dot size. B कर देते हैं, यहाँ पे C तो लिखा हुआ ही है. This is the case and B's next element is smaller. So we will move B, otherwise we will move C and then we'll check for if Y का size is less than B का size, then we'll return 1, otherwise we'll return 2. Makes sense. X है यहाँ पे, ठीक है, तो जीरो रिटर्न हो रहा है वरना टू रिटर्न हो रहा है, जीरो टू वन टू वन टू, यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है, जीरो वन एंड यहाँ पे टू है। ठीक है, इट मेक्स सेंस। अभी हमें बचा है फाइंड मिन इंडेक्स इम्प्लीमेंट करना, तो इन फाइंड मिन इंडेक्स int I int j int k। अब if I is less than j and I is less than k, so we will simply return zero कि हाँ हमारे पास सबसे छोटा इंडेक्स a पे है। Else if j is less than I and j is less than k, in this case we'll return one कि बीच वाला index is the one to be moved, otherwise we'll simply return two. Let's try running this code. I think I've made it a little complex. So forward minimum value with no type. This error is line 89. लॉजिक ही चेक करना पड़ेगा वापस. So basically let's go over this again. पहले हमने सॉर्ट कर ली चीजें, a डॉट एंड b डॉट एंड c डॉट एंड, ठीक है. हमने एक इंट मैक्स ले लिया, हाँ. फिर हमने तीन पॉइंटर्स बना लिए, फिर हमने x के साथ a, y के साथ b और z के साथ c रखा, ठीक है. And then we basically computed the minimum and maximum. Maximum के लिए max कर दिया, min कर दिया, ठीक है. Now if we what we have is greater, तो हम उसको min से वो कर रहे हैं कि हाँ छोटा वाला हम ऑलरेडी अपने पास स्टोर कर रहे हैं. Then we took an index and we went to point helper x, y and z. Nice. Okay, something is still failing. 0 to 10. यहाँ पे टू आना चाहिए था. ओके, लेट्स गो ओवर द लॉजिक की क्या गलती हो रही है. इफ इंडेक्स इज that is returned is 0, तो we increment x, otherwise we increment y, otherwise we increment z, and in the end we simply return our 2 into answer. आंसर हम हर बार अपडेट कर रहे हैं, ठीक है. मिन में हम क्या कर रहे हैं,
हम सबसे छोटा इंडेक्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है. So basically, if I is less than this and this, then we return zero. If j is less than this and j is, हाँ ठीक है, k ठीक है. Otherwise, I don't think we should have a if here. In any case, it will return two ही. If हम इसको कॉल ही तब कर रहे जब तीनों में डिफरेंस हो. So we have declared a b c x y z, fine. Then we do if a is not equal to b and a is not equal to c and b is not equal to c. Hmm. So we return this a, b and c सही तो है. Then we do return zero if all of them are same. ठीक है. Then we check for two numbers. If a is equal to b, तो उस केस में हम c से चेक करेंगे. तो हमने a और c को चेक किया. a और c को चेक किया and c is smaller, so we return 2. Otherwise what we do is हम दोनों के आगे वाले इंडेक्सेस चेक करते हैं पहले कि x is this, तो ये बेस केस हो गया. एंड if a is smaller, तो we increment the x pointer, correct. Otherwise we increment b's pointer. ये सारे if else में confusion हो रहा है, I feel. Otherwise we check if the size is this, so we return 0, else return 1, but this case shouldn't matter. Then a is this and c is this, so we check for a and b. Now if b is smaller, we return 1. Otherwise we check for a and c. When we check for a and c, we see a is smaller, so we return 0, otherwise we return 2. Then this is the same case, fine. For b and c, अच्छा b and c में जब same है तो we have to check for a. तो पहले क्या क्या रिटर्न हुआ, एक बार a रिटर्न हो गया, एक बार 2 रिटर्न हो गया. तो if this is a at x, तो we return 0. 1 2 1 2, ठीक है. Let's try running this. ये भी पास हो गया, चलो नाइस. चलो इसमें all the test cases pass. I hope you all were able to understand all the three questions that we did. Due to time constraints, I have to end the live here. कुछ भी doubt हो तो you can comment below and we'll get back to you on the same. Thank you.